So today we are starting with our, first prediction class और first prediction topic है. अनिश जी आ जाइए please if you can, and गौरव जी, you please switch on your videos. पहला टॉपिक जो हम टेक अप करते हैं, फर्स्ट टॉपिक दैट वी टेक अप फॉर प्रेडिक्शन इन एनी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक और वैदिक और केपी, इज लॉन्गेविटी. लॉन्गेविटी मतलब आयु निर्णय, किसी की लाइफ कितनी है, हाउ लॉन्ग इज वन एक्सपेक्टेड टू लिव, हाउ टू प्रेडिक्ट दैट. तो उसके कुछ रूल्स हैं. आई ओपन द राइट अप, रीड आउट द रूल्स. ओके गौरव जी, दैट देख लीजिए आप. I'll read out the rules, and if there is any confusion आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पहला क्लास है predictions पे, तो I'll go very slow with it. And इसमें okay, can all of you, everyone see this? Let's write up. Judgment of longevity. What is longevity? How long is one expected to live? Okay. So how do we predict this in KP? Okay, now check out the connections of the ascendant sublord. Now I have told you, I have put a caveat, and right before starting predictions, again I am putting the caveat. If you are not sure about the time of birth, okay, then do not depend on the cuspal sublord. Check out connections of the ascendant sublord. That means the cuspal sublord of the ascendant. This decides how long a life one has. मेरी आयु कितनी लंबी है, वो फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड डिसाइड करता है. देखिए, अगर इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस सबलॉर्ड, दैट मीन्स द टाइम ऑफ बर्थ, अगर आप श्योर नहीं है कि वो 5-10 मिनट ऊपर नीचे होता है, देन do not try and predict longevity, or for that matter any event in KP, by using the cuspal sublord. Don't do that. Just straight away go to the house significators. That I'll tell you what I mean. अगर आप श्योर हैं तब तो यूज कीजिए, अदरवाइज इसका दो तरीका है. एक तो सबलॉर्ड्स को, कस्पल सबलॉर्ड्स को इग्नोर कर दीजिए. इफ यू आर श्योर अबाउट द टाइम ऑफ बर्थ, देन यू टेक अप द कस्पल सबलॉर्ड. कस्पल सबलॉर्ड करेक्ट है तो प्रिडिक्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा. अदरवाइज फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि कस्पल सबलॉर्ड मत देखिए, दशा अंतर दशा सीधे सीधे देखिए. तीसरा ऑप्शन क्या है केपी में? तीसरा ऑप्शन है कि होररी नंबर से, प्रश्न पद्धति से प्रेडिक्ट कीजिए आयु कितनी है. सपोज मैं पूछता हूं अपने बारे में कि वो हाउ लॉन्ग एम आई एक्सपेक्टेड टू लिव, बट देन एस्ट्रोलॉजर इज आस्किंग मी कि सर आपका टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है कि नहीं, तो मैं बोलता नहीं, पता नहीं, 10-15 मिनट, आधा घंटे का फर्क हो सकता है. देन द एस्ट्रोलॉजर शुड टेल मी कि सर आप मेरे को एक प्रश्न से निकालूंगा, मैं होररी एस्ट्रोलॉजी प्रश्न पद्धति से निकालूंगा, और प्रश्न पद्धति से बहुत एक्यूरेटली निकलता है अभी एज वी गो अलोंग. बट एनीवे, if the time of birth is correct, then how do we go about it? Check out the connections. Check out the connections of the ascendant sublord. What does this mean? This means that फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड यानी कि असेंडेंट का सबलॉर्ड किस किस हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है. हाउसेस, ये क्या हो रहा है आज भाई, इसी में टाइम सारा चला जाएगा. आप देख लीजिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी नेटवर्क का. बार बार अगर आप बाहर अंदर जाएंगे तो फिर यू विल नॉट बी
able to follow what is happening. So you go to to a spot where the network is reasonably strong. फ्लो भी टूटता है बार बार एंटर कराने में, और फिर फ्लैश करता है as soon as I start and somebody is in the waiting room. Check out connections of the ascendant sublord. Ascendant का sublord क्या दिखा रहा है, क्या connections होने चाहिए. If this sublord, that means if this ascendant sublord is connected to the Marak sthanas and or the Badak sthanas without having connections with life-giving bhavas, that is life-giving bhavas, cusps, houses are the same thing. Life-giving bhavas, cusps, longevity is to be judged as short. अभी उसमें हम आएंगे. What is Marak sthan? What is Badak sthan? I will explain to you. So if the ascendant sublord has connections or becomes significator of the Marak sthanas and or the Badak sthana, तो फिर, and if it does not have connections simultaneously with the life-giving houses, long life-giving houses, then longevity to be judged is short. I'll explain to you. Life-giving houses are 1, 3, 8, 5, 9, 11. Okay? 1, 5, 9, 3, 8, 11. 9, 11. These are life-giving houses. Note for movable Rashis, 11th is Badhak Sthana. For movable Rashis, there are certain things, which I am not going to teach you. Let me tell you at the outset, because that is pure and sheer wastage of time. Like, characteristics of Rashis. फिक्स राशि कौन है, मूवेबल राशि कौन है, ठीक है, डुअल राशि कौन है, ये सब किताबों में है. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम ऑन दैट. एनी बुक यू गो टू गूगल ऑल्सो, आपको पता चल जाएगा. जो नेचर ऑफ राशिज आप खोलिएगा तो आपको मिल जाएगा मूवेबल राशि कौन सी है, फिक्स राशि कौन सी है, फायरी कौन सी है, अर्थी कौन सी है, ठीक है, एयरी कौन सी है, वाटरी कौन सी है, वो ये रटने की चीजें हैं. बट एनीवे, यहाँ पे लाइफ गिविंग हाउसेज आर 1, 3, 5, 8, 9, 11. Note, please note, this is important. I'll explain to you also. Movable Rashi's 11th house is Badhak Sthana. For fixed Rashi's 9th sthan is Badhak Sthana. Okay? And for the other one, for dual Rashi, 7th house is the Marak Sthana and Badhak Sthana. Abhi aate hain usme. If this sublord means we are talking about the ascendant sublord. If this sublord has connections with Marak Sthanas and or Badhak Sthanas and also with life-giving houses, longevity is going to be up to middle age. ये हम definitions बता रहे हैं. If this sublord has connections only with life-giving houses, longevity is full longevity. Now, what is full longevity? What is short longevity? That is a given. Short longevity is to 33 years. Okay, middle up to 66 years and above 66 years is considered as full longevity. But now, मैंने आपको एक चीज बता दूं, ये बहुत पुराने डेफिनेशंस हैं. विद द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, एक चीज होती है ना, देश काल पात्र. See, everything has changed now. The general longevity of all countries, all places, all races, everything has gone up. So ये हमको इसको थोड़ा सा, we have to be flexible. Now short longevity 33 years बोलते हैं, ठीक है, हम मानते हैं, but then you can increase this now by 10 years, say 5 to 10 years. Short longevity you can treat as 40 to 45 years also, at least 40. Middle can go up to 70, and beyond 70 can be full longevity. Life-giving houses or bhavas are first, third, eighth houses along with 5, 9, 11. These are life-giving houses.
नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मारक स्थानास फॉर ऑल असेंडेंट्स, एनी असेंडेंट, एनी एनी राशि, किसी भी असेंडेंट के लिए सेकंड एंड सेवेंथ भावास और हाउसेस, दे आर कॉल्ड मारक स्थानास। आप सुनते हैं ना, मार्केश चल रहा है, पंडित जी बताते हैं आपका मार्केश चल रहा है, इसका मतलब सेकंड या सेवेंथ की आपकी दशांतर दशा चल रही है। ठीक है, सेकंड और दूसरे और सातवें भाव को मारक स्थान कहते हैं, तो उनका सिग्निफिकेटर क्या हो जाएगा? मार्केश प्लैनेट हो जाएगा, मार्केश ग्रह हो जाएगा। बाधक स्थान, देखिए दो चीजें हैं डेथ में, लॉन्गेविटी कैलकुलेशन में, मारक स्थान और बाधक स्थान। फॉर मूवेबल राशि और ascendant is the 11th cusp. Which is the movable राशि? 1, 4, 7, एड उसमें कितना आ जाएगा? 1, 4, 7, 10। दीज आर मूवेबल राशिज, अभी दिखा दूंगा। मतलब एरीज, एरीज के बाद 4 विल बी कैंसर, अभी दिखा दूंगा निकाल करके। दे आर मूवेबल राशिज। फॉर ऑल मूवेबल राशिज द 11th हाउस is supposed to be the Badhak Sthana. 11th house is a very auspicious house otherwise in any horoscope. लेकिन when it comes to calculation of longevity, आयु निर्णय जब हम करते हैं, और आपका जन्म जैसे अगर मेष राशि में हुआ है, तो 11th हाउस आपका बाधक स्थान माना जाएगा। ठीक है। For fixed rashis ascendants, 9th भावा is the बाधक स्थान। तो एरीज के बाद कौन आता है? टॉरस, ये फिक्स्ड है। ठीक है, 2, 5, 8, 11, दे विल बी फिक्स। नंबर, राशि के नंबर बोल रहा हूं मैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। दे उनका जो 9th हाउस है वो बाधक स्थान है, और 9th हाउस के सिग्निफिकेटर बाधकेश है। ठीक है। फॉर डुअल असेंडेंट्स, डुअल हाउसेस कौन कौन से होते हैं? 3, 6, 9 और 12। 3, 6, 9 जेमिनाई, वर्गो, सैगिटेरियस, पाइसिस, दे आर डुअल राशिज। तो इनके लिए 7th हाउस, मारक स्थान तो सभी के लिए 7th हाउस होता है, डुअल राशिज के लिए 7th हाउस ऑल्सो बिकम्स द बाधक स्थान। ना देखिए लिखा है हमने, मूवेबल राशिज आर एरीज, कैंसर, लिब्रा, केप्रिकॉन। फिक्स्ड राशिज आर टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। डुअल राशिज आर जेमिनाई, वर्गो, सैगिटेरियस एंड पाइसिस। The 6th, a weak 8th, 12th are also not good for longevity. 10th bhava is 2 is considered negative for longevity. ये भी they are not good for longevity. अगर जब आप देखिएगा इवन द अगर असेंडेंट सबलॉर्ड का कनेक्शन इनसे भी होता है, 6th, 8th, 12th, वीक 8th हाउस, वीक 6th, 8th, 12th, 10th से होता है, तब भी ये लॉन्गेविटी को घटाता है, आयु को घटाता है। ऑल्सो जज द स्ट्रेंथ ऑफ सैटर्न, दिस इज अ वैदिक कॉन्सेप्ट विच इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर फॉर लॉन्गेविटी। अगर आपका सैटर्न स्ट्रांग है तो अमूमन लॉन्गेविटी थोड़ी लंबी होती है। शॉर्ट लाइफ इज अप टू 33 ईयर्स, अभी हमने पढ़ा, उसको थोड़ा आप फ्लेक्सिबिलिटी आजकल कर सकते हैं। मिडिल लाइफ इज अप टू 66 ईयर्स एंड फुल लाइफ इज अप टू 100 ईयर्स एंड बियॉन्ड। 120 काल पुरुष की, काल पुरुष की जिंदगी होती है ना। लाइफ अप टू 8 ईयर्स फॉल्स अंडर द बालारिष्टा योग। बहुत ही कम, बालारिष्टा योग मतलब बहुत कम लाइफ, बालारिष्टा योग बहुत ही खराब। बालारिष्टा एक दो हम लोग अभी पढ़ेंगे एग्जाम्पल में। बट बिफोर वेंचरिंग इनटू प्रेडिक्टिव लॉन्गेविटी in the natal horoscope, ensure that time of birth is very accurate. Otherwise, do not predict, as it is a very sensitive matter. Don't predict. Then you can just go to the dasha antar dasha. If somebody is not
विल नॉट वेल, मान लीजिए उसको कोई सीरियस डिजीज है और अब तब का हिसाब किताब है, बट आप देख रहे हैं कि उसका असेंडेंट का सबलॉर्ड जो है वो तो स्ट्रॉन्ग हाउस से कनेक्टेड है, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, देन यू कैन सेफली से दैट ये हॉरोस्कोप का टाइम करेक्ट नहीं है। बट दशा अंतर दशा, वो आपको डेट वाइज नहीं जाने की जरूरत है, देशा अंतर दशा गिव्स यू अ स्पैन। तो आप फिर रीजनेबली जज करके बता सकते हैं कि ये आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा। टाइम ऑफ बर्थ अगर करेक्ट नहीं है तो आप लॉन्गेविटी, कोई पूछता है ना मेरी उम्र कितनी है, तो आप टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो मत कीजिए, बोलो ठीक है तुम एक नंबर दो मेरे को, मैं होररी से निकाल करके बताऊंगा। ओके, उसमें कैसे करना होता है, वो कैसे प्रिडिक्शन होता है, वो मैं अभी अब आएंगे उस पर। तो हमने रूल्स पढ़े लॉन्गेविटी के प्रिडिक्शन के, हमने वी हैव स्टडीड द रूल्स। क्या पढ़ा हमने? अगर टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है तो असेंडेंट का सबलॉर्ड, अगर उसका कनेक्शन इज ओनली विद द मारक स्थानास एंड बाधक स्थानास without having connections to the life giving houses, then life is short. Maraksthana Bhadaksthana क्या होता है? The second house and the seventh house are Maraksthanas for all rashis. अगर मूवेबल राशि का बंदा है वो, तो then the 11th cusp becomes the बाधक स्थान। अगर वो फिक्स्ड हाउस का है, मूवेबल के बाद फिक्स्ड हाउस का है, असेंडेंट का है, तो नाइन्थ कस्प बाधक बाधक हो जाता है। और अगर अगर वो डुअल राशि में उसकी पैदाइश है, जैसे जेमिनी में है या वर्गो में है, तो सेवेंथ हाउस बिकम्स बोथ मारक स्थान एंड बाधक स्थान। तो अगर किसी के हॉरोस्कोप में, देखिए बच्चे का जब आपके पास हॉरोस्कोप आता है तो सबसे पहला आपको क्या देखना है? उसके लॉन्गेविटी देखनी। अगर टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है, लोग लेके आते हैं ना बच्चे को हॉरोस्कोप, सबसे पहले लॉन्गेविटी देख। अगर असेंडेंट सबलॉर्ड का कनेक्शन मारक और बाधक दोनों से है, बट एट द सेम टाइम लाइफ गिविंग हाउसेस भी है, से भी है, तो उसकी मिडिल एज होगी। और अगर असेंडेंट सबलॉर्ड का कनेक्शन इज ओनली विद द लाइफ गिविंग हाउसेस एंड नॉट विथ द मारक बाधक, तो फिर उसकी जिंदगी लंबी, ठीक है, फुल लाइफ। ठीक है, इसके बहुत सारे इसमें, इट्स नॉट एज सिंपल एज दिस, उसमें और बहुत सारा देखा जाता है। एंड जैसा हमने बताया, किसी भी इवेंट को जज करने के लिए हमें हाउ पूरे हॉरोस्कोप को जो है इन टोटलिटी देखना है, नॉट नेवर इन आइसोलेशन की एक चीज हमने पकड़ लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। स्पेशली जब हम कस्पल सबलॉर्ड पे डिपेंड कर रहे हैं, कस्पल सबलॉर्ड पे नहीं डिपेंड कर रहे हैं, तो आप सीधे सेकेंड सेवेंथ बाधक स्थान मारक स्थान का सिग्निफिकेट है उसको देखिए। और देखिए दशांतर दशा किसकी चल रही है, डेथ कब होगी? डेथ होगी बाधक स्थान मारक स्थान, बाधकेश मारकेश की जब दशाएं चलेंगी, उस टाइम डेथ होती, उस टाइम डेथ होती। तो ऐसा तो नहीं है ना, मारक स्थान बाधक स्थान, मारक मार्केश और बाधकेश, ठीक है, सेकेंड सेवेंथ नाइन्थ इलेवेंथ प्लैनेट्स को तो कॉम्बिनेशन ऑफ दशा हमारी जिंदगी में बहुत बार आ सकते हैं, तो क्या हर बार हमारी डेथ हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। दैट इज वाई ये आयु निर्णय, अगर किसी के हम देखते हैं कि मिडिल लाइफ निकल रहा है, मिडिल लाइफ निकल रहा है, और उस समय उसका मारक और बाधक दोनों का स्ट्रॉन्ग मारक और बाधक की दशा कॉम्बिनेशन आ रही है जिस टाइम में, और फिर देख रहे हैं हम कि उसके हेल्थ के भी इंडिकेशंस अच्छे नहीं हैं उस टाइम में, दे हैव यू हैव टू सी सो मेनी थिंग्स। क्या उस टाइम में उसका कोई एक्सीडेंट लिखा हुआ है? बहुत कुछ देख करके ही जो है फिर हमें प्रिडिक्ट करना होता है कि इनकी डेथ कब हो। और सबलॉट पे नहीं डिपेंड कर सकते हैं तो होररी एस्ट्रोलॉजी हम पढ़ेंगे, हम कल, या क्या है होररी एस्ट्रोलॉजी, आई विल टेल यू टुमारो।
एक ये है, और ये एस्ट्रोलॉजी कल पढ़ेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है बेसिक्स का, अभी हमने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि अभी अगर पढ़ा देंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया, राहु और केतु कैसे एक्ट करते हैं। दैट ऑल्सो वी विल टेक अप इन वन, इन टुमारोज क्लास और द नेक्स्ट क्लास। तो अभी हम, इसमें कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? बिकॉज देखिए, थोड़ा सा केपी कॉम्प्लेक्स है, अनलेस एंड अनटिल योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर। और अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो हमसे पूछ लीजिए आप, ये अभी खुला हुआ है, एनी ऑफ यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। सर आपने कहा कि सैटर्न भी मतलब इम्पोर्टेंट है, अगर सैटर्न रेट्रो हुआ तो मतलब रेट्रो क्या से फर्क पड़ेगा? नहीं, नहीं नहीं, रेट्रो से केपी में कोई मतलब नहीं है। नेटल चार्ट में रेट्रो से केपी में कोई मतलब नहीं है। वैदिक भी जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें भी रेट्रो से कोई मतलब नहीं। यहाँ ये देखा गया है कि रेट्रो अदर इवेंट्स ऑफ लाइफ में थोड़ा सा प्रोग्रेस को स्लो करता है, बस। लेट्स पुट इट दैट वे, रेट्रो से नहीं मतलब है। रेट्रो का कॉन्सेप्ट आएगा जब हम होररी एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे। तो ये कैसे आयु निर्णय करना है, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? मारक कौन है, बाधक कौन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये मैं आपको एक वो खोल देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। नहीं, ये नहीं है, नहीं है। यहाँ से स्टार्ट होता है ना, कौन सी राशि है ये? विच राशि इज इट? एरिस। एरिस। एरीज। अभी मैंने क्या बताया था? एरीज क्या है? मूवेबल। मूवेबल है। तो इसका बाधक स्थान कौन सा होगा? 11th। तो इसमें कौन सा 11th हाउस कहाँ नजर आ रहा है? एक्वेरियस। लिब्रा। लिब्रा। ये 11th है। 11th का सिग्निफिकेटर कौन नजर आ रहा है आपको यहाँ? मर्करी वीनस। तो मरकरी और वीनस, इसके लिए अगर असेंडेंट यहाँ हुआ, अभी खाली ये समझिए, यहाँ तो 5th हाउस है, अगर असेंडेंट यहाँ हुआ तो 11th हाउस विल बिकम। इसमें देखिए क्या है, अच्छा लेट अस सी, इसमें क्या है असेंडेंट? सैजिटेरियस। सैजिटेरियस। सैजिटेरियस क्या है बताइए? फिक्स, डुअल, मूव? डुअल। डुअल। डुअल में क्या होता है? 7th हाउस। 7th हाउस। ठीक है। तो 7th हाउस बिकम्स मारक एंड बाधक बोथ फॉर दिस हॉरोस्कोप। 7th का सिग्निफिकेटर्स कौन है? मार्स मर्करी। मार्स है। ठीक है। So they become Badhak and Marak both. Mainly Mars because it's the strongest significator, and then Mark. और क्या नियम सिखाया? हु इज द ascendant? ascendant का सबलॉर्ड कौन है? राहु। राहु। राहु के कनेक्शंस देखिए, इसमें हमने देखा सेकंड से, 7th से, 11th से है क्या? नहीं है। नहीं है। ठीक है, लेकिन राहु, ठीक है चलिए, अभी अभी हम राहु केतु में नहीं घुसेंगे, क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो। तो अगर इफ वी ट्रीट राहु एज अ नॉबल प्लैनेट, देन इट डज नॉट हैव एनी कनेक्शंस, तो डेफिनेटली लॉन्ग लॉन्गेविटी अपीयर्स टू बी प्रॉमिस्ड। अब राहु के कनेक्शंस किससे किससे हैं? थर्ड से हैं। राहु के कनेक्शंस और किससे हैं? थर्ड से भी है। हाँ ठीक है, फोर्थ इज सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल है। फोर्थ आएंगे, फोर्थ इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर लॉन्गेविटी, स्पेशली इफ द पर्सन इज सिक।
we'll come to Right. that. We'll come to that. That is उस sickness को लेकर के है. Sickness, illness and longevity are connected. So it is connected with the third house. It is untenanted. Okay. So it has full signification of the third house, which is a life-giving house. So we can say, hypothetically समझा रहा हूं कि this person has, now does Rahu have, it does not have any connections with the Marak and Badhak sthanas. So we can say that this person is promised a long life. ठीक है, कोई खतरा नहीं है इनकी जिंदगी को. ठीक है, उसमें अभी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. राहु केतु को हम लोग कल पढ़ेंगे. राहु रिप्रेजेंट्स जुपिटर, तो हमें जुपिटर को भी देखना होगा, बिकॉज राहु विल गिव द रिजल्ट्स ऑफ जुपिटर. तो कहीं जुपिटर क्या क्या दिखा रहा है? जुपिटर भी ना सेकंड दिखा रहा है, ना सेवेंथ दिखा रहा है, और ना ही सेकंड सेवेंथ नहीं दिखा रहा है. तो फिर डेफिनेटली दिस पर्सन इज प्रॉमिस्ड लॉन्ग लाइफ. इसमें और कॉन्सेप्ट में पूछना है तो पूछिए, फिर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल लेकर के. सो रूल्स फॉर आयु निर्णय के नियम समझ में आ गए सबको? आयु निर्णय के नियम समझ में आ गए सबको? ठीक है. विच आर दी अदर हाउसेस दैट आर नॉट गुड फॉर लॉन्गेविटी? सिक्स्थ हाउस. क्यों? क्योंकि बीमारी का घर है. ठीक है, सिक्स्थ हाउस. एट्थ हाउस सीरियस बीमारियों का घर है, एक्सीडेंट का भी घर है, अड़चनों का भी घर है. ट्वेल्थ हाउस वो भी एंड ऑफ लाइफ दिखाता है, सेपरेशन, मोक्ष. ट्वेल्थ हाउस. टेंथ हाउस. वाई टेंथ हाउस? बिकॉज for the purpose of longevity, it is negating the 11th house. Fifth and 11th houses are the houses of recovery from illness, and 10th house negates the 11th house. So these are not considered, they are not marakas or badakas, but they are considered. 12th is very near to a marak or badak. 12th, it is almost treated like a marak badak. अगर सेकंड सेवेंथ और बाधक के साथ 12th आ रहा तो डेफिनेटली आप समझ जाइए कि वो खराब है. कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड. प्रीति जी क्लियर? सैटर्न स्ट्रांग है, लेकिन सैटर्न को अकेले स्ट्रांग होने से नहीं होगा. वो एक जो है ना, वो एक फैक्टर है विच विल कंट्रीब्यूट टू लॉन्गेविटी. ओके, सैटर्न का स्ट्रांग होना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आयु का कारक जो है, आयुष कारक शनि को बोलते हैं. ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसीलिए उसको आयुष कारक बोलते हैं. वेयर इज वो कहाँ गए हमारे? वो has he not joined today? वो हमारे आईआईटी वाले स्टूडेंट जो हैं. शायद उसका इंटरनेट कुछ कनेक्शन से है, सो ही सेड ही इज ट्राइंग टू जॉइन करके बोल रहा था मैसेज ग्रुप में. अच्छा, वो गौरव वही है ना? नहीं नहीं, वो शाश्वत. शाश्वत. अरे उसका भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, वो तो आईआईटी में हॉस्टल में होना तो नहीं चाहिए. एनीवे, चलिए ठीक है. तो नाउ we'll take up an example. याद कराइएगा मुझे रिकॉर्डिंग खोलने के लिए. चल रहा है सर. नहीं नहीं, रोक दिया था हमने. नॉट श्योर, मेरे लिए तो रिकॉर्डिंग अभी भी दिखा रहा है. दिखा रहा है क्या? देख लेता हूँ मैं. यस सर, रिकॉर्डिंग चल रही है. चल रही है तो हाँ सर. मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, फिर आता हूँ. लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग.